डिप्रेशन, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में ये हाइपर इन्फ्लेशन, प्रोटेक्शनिज्म, कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज हो रही थी। अब क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया जो एक हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था, बिकॉज ऑफ विच all the countries wanted to protect their own domestic producers, as a result of which they were adopting policies which were of the nature beggar thy neighbor policies, such as increased tariff controls on the imports, etc. And finally, because of all these policies, all these problems, there was an end of this gold standard. Then हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे जिसकी वजह से ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था. सो यूएस, ब्रिटेन एंड अदर अलाइज मेट एट ब्रिटेन वुड्स टू replace the gold standard, and herein we discussed that US will maintain the gold reserves and other countries will maintain the reserves in terms of USD. However, French objected to this because of political reasons and the economic gains that French thought that US was having. So, because French objected, there was, and other countries also felt this uncertainty, there was run on gold in 1968, and finally, two-tier gold price system was adopted, wherein partially the gold price will be determined by US and partially it will be determined in the market. However, repeated financial crises of small intensity, less intensity or high intensity were kept on happening during that phase. And then another system was adopted in IMF, that is special drawing rights, जहाँ पे पहले से ही जितना कोटा सिस्टम के बेसिस पे हम उनको अलॉट कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे. And US responded to this huge trade deficit by making USD inconvertible into gold, कि अब हम गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे. Finally, till 1973 आते आते all other countries were most of the countries जो member countries थी IMF की या इस Bretton Woods conference में, their currency. Then we discussed कि OPEC crisis हुआ था, oil price increase हुआ था, जिसकी वजह से USD थोड़ा सा better perform करने लग गया था क्योंकि US ने capital outflows पे अपने controls को remove कर दिया था. Large scale lending कर रहा था US to the developing countries जो अभी industrialization phase में थे, and companies को भी. And there was this formal ratification in 1978, and अभी तो US ने 1973 में सिर्फ gold को refuse किया था कि हम convert नहीं करेंगे. Finally, officially in 1980, the gold was demonetized. इसके आगे वाला ये जो बुलेट पॉइंट है वो हमें आज डिस्कस करना है, बट एक बार प्लीज कंफर्म करो कि आप लोगों को उतना क्लियर है जितना मैंने अभी रिवाइज कराया है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली. जितना अभी हम लोगों ने एक बार क्विक ओवरव्यू लिया है उतना क्लियर है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म. यस, ठीक है. सो नाउ आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन फ्रॉम आईपैड. विजिबल है? आईपैड का स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So this we discussed that gold was officially demonetized and half of the IMF's gold holdings returned to the members. Remember हमने कहा था कि कुछ 25% उनको गोल्ड की टर्म्स में देना पड़ेगा, तो जितना भी हमारा गोल्ड होल्डिंग्स था वो सारा का सारा जो भी मेंबर कंट्री का बनता था उनको वापस कर दिया गया, बिकॉज गोल्ड वॉज ऑफिशियली डीमोनेटाइज्ड. एंड डीमोनेटाइजेशन का मतलब तो अब हम सबको पता है कि क्या होता है. अगर नवंबर में वो नहीं हुआ होता तो हमें शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत होती कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है. नाउ वी ऑल नो व्हाट इट मेंट, एंड कितना ड्रास्टिक वो चीज़ रही होगी कि जब जो बेस हमने लिया है, गोल्ड को हमने बेस लिया, ठीक है, यूएसडी में हमें मेंटेन करना है, बट यूएसडी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड है, वही हमारा बेस है, उसी को आपने डीमोनेटाइज कर दिया, तो कितना ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पे इस चीज का स्ट्रेस हुआ होगा. वी कैन श्योरली इमेजिन दैट. Now the other half was sold and the proceeds were to be used to help the poor nations. Now, but यहाँ पे भी लिख तो दिया है कि to help the poor nations, पर कंडीशनल हेल्प होती है वो कि हम आपको दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट उसके बदले में you need to adopt all these macroeconomic policies so that your nation can develop. Now, individual countries were allowed to sell their gold holdings, and the IMF and some other countries began the sale process. IMF sales were completed by May 1980. ये सब May वगैरह याद रखने की आप लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. You should just know that the gold was demonetized during this period. And then finally, in the presidential election of 1980s in US, the subsequent adoption of supply-side economics, that is lowering taxes and decreasing the regulations. Supply-side economics क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि अभी तक हमारी जो भी इकोनॉमिक स्टडीज थी, थ्योरीज थी, वो फोकस कर रही थी ऑन द डिमांड साइड इकोनॉमी, कि हम लोग डिमांड को कैसे बूस्ट करें. आप एक चीज़ देखो,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जब हम किनीजियन की सारी थ्योरी कर रहे थे, ठीक है, हमने कंजम्पशन डिमांड थ्योरी की, हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड थ्योरी की, तो हमने जो भी अभी तक थ्योरीज की हैं वो सारी हमने डिमांड के एस्पेक्ट से की हैं। इफ़ यू विल जस्ट गो बैक 1 और 2 सेमेस्टर्स, हमने सारी थ्योरीज डिमांड के एस्पेक्ट से की है कि डिमांड को कैसे इंक्रीज करना है। अब हम लोगों को ये रिक्वायर्ड था कि हम लोग सप्लाई साइड पे फोकस करें कि सप्लाई को भी कैसे बूस्ट करना है। सेज लॉ याद है? माइक्रो में आप लोगों ने सेज लॉ पढ़ा होगा। सेज लॉ याद है? व्हाट इज सेज लॉ? व्हाट इज सेज लॉ? व्हाट इज सेज लॉ? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस इज सेज लॉ। याद आया? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो हमें सप्लाई साइड को भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। ओके विदिशा, सप्लाई साइड को भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। अभी जब हम लोग का ये कोविड का एस्पेक्ट आया था, जिसमें कि हम लोग की प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुई थी और डिमांड भी इफेक्ट हुई थी, तो जो भी हमारे पॉलिसी मेजर्स लिए गए थे वो दोनों साइड को बूस्ट करने के लिए लिए गए थे। सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट को हम लोग एक अनबैलेंस्ड तरीके से ग्रो करना एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें दोनों दोनों सप्लाई साइड एज वेल एज डिमांड साइड दोनों ही जगह पे फोकस करना चाहिए। अभी तक इकोनॉमी में जो फोकस हो रहा था वो डिमांड साइड, जो हमने टैरिफ भी पढ़ा, हमने टैरिफ पे इम्पैक्ट किस चीज पे देखा? कंज्यूमर डिमांड के ऊपर देखा ना, कि कंज्यूमर डिमांड को कम करना है तो हम टैरिफ इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम लोगों का, और हमने जो बाकी केस स्टडी भी की कि अगर हम लोगों की डिमांड इंक्रीज होती है, अगर कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज होती है तो कोटा के केस में क्या इम्पैक्ट आएगा और टैरिफ के केस में क्या इम्पैक्ट आएगा। सप्लाई के बेसिस पे तो हमने इतनी थ्योरीज की ही नहीं है। सो उस टाइम तक भी हमारी जो थ्योरीज थी वो लिमिटेड थी डिमांड को बूस्ट करने के लिए या डिमांड को चेंज करने के लिए। बट 1980s के बाद सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को एक सडन बूम मिला। आप देखो 1776 से हमारा एडम स्मिथ क्लासिकल थ्योरी चल रही थी। उसके बाद जब 1929 में इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट थ्योरी किनीजियन थ्योरी आई, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वाज रिक्वायर्ड। उसके बाद भी जब चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, देन इन 1980s onwards we started focusing on the supply side economics. So slowly because of these problems, new theories and new policies started coming up. सो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारा? लोअरिंग द टैक्सेस, टैक्सेस को कम करना, ताकि हम लोग ज्यादा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोगों को ज्यादा अपने लिए प्रॉफिट सेव हो। और प्रोड्यूसर्स को अगर प्रॉफिट ज्यादा सेव होगा तो वो जो वेज टैक्स क्रिएट करता है, ये लाइन याद है? मैंने आप लोगों को बताया था अभी टैरिफ के केस में भी, दैट टैक्स प्लेसेस अ वेज between the price paid by the consumer and the price received by the seller। ये लाइन याद है? टैरिफ के केस में भी बताई थी मैंने। हाँ, रवि ने वो क्लास अटेंड की थी, मुझे याद है। अगर हम इस टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं तो ये वेज रिड्यूस हो जाएगा, ये गैप रिड्यूस हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और अगर प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो उस पैसे को यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन को फर्दर एक्सपैंड कर सकता है। सो लोअरिंग द टैक्सेस का हमारा यहाँ पे ये मतलब है, एंड डिक्रीजिंग द रेगुलेशंस। अभी 4-5 साल पहले मैंने आप लोगों से 2-3 दिन पहले ही पूछा था कि रेड टेपिज्म क्या होता है, जो 4-5 साल पहले हम लोगों का आया था कि हमने रेड टेपिज्म को रिड्यूस किया है। तो ऐसे ही रेगुलेशंस को रिड्यूस करना, ताकि प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो अपने प्रोडक्शन को जल्दी से एक्सपैंड कर पाएँ एज पर द चेंजेस इन द इकोनॉमी। सो 1980s के बाद things started moving towards boosting and encouraging the production instead of beggar thy neighbor policies, कि दूसरे प्रोड्यूसर्स का कैसे करके नुकसान किया जाए। उससे बेटर है कि हम अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। सो by the Reagan, that is the president who was 1980 में, administration was followed by a period of growing US fiscal and balance of trade deficits. What is this? Devansh is joining now. Okay, so nevertheless, the US dollar experienced a substantial appreciation, further adding to the US trade deficit.
अब अगर हम उस टाइम पे जब हम लोगों का ऑलरेडी एक डेफिसिट सिनेरियो चल रहा है, वहाँ पे हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखो अगर हम लोगों की करेंसी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारी करेंसी अगर एप्रिशिएट होती है, तो उस केस में हम लोगों के एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे? अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट्स नॉर्मल कंडीशंस में इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? बाय एक्सपोर्ट्स आई मीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन। अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो हम लोगों के वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होंगे या इंक्रीज होंगे? मार्शल ने कंडीशन बताया था, जे कर्व बताया था मैक्रो में, इंक्रीज होंगे विदिशा। हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, अच्छा चलो ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, अभी सपोज हमारा हम लोगों का अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है, मान लो 70 रुपीज पर यूएसडी, ठीक है, और नेक्स्ट इज ₹60 पर यूएसडी। ये एप्रिसिएशन का केस है या ये डेप्रिसिएशन का केस है? यस रवि, डिक्रीज होंगे, राइट, डिक्रीज होंगे। सो ये एप्रिसिएशन का केस है, महंगा हो जाएगा। विदिशा ये एप्रिसिएशन का केस है या ये डेप्रिसिएशन का केस है? मैम बट यू सेड वैल्यू ना, अगर क्वांटिटी डिक्रीज हो सकती थी, बट इट्स नॉट लाइक पूरा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। सो वट एवर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर अगर अप्रिशिएट भी हो रहा है तब भी तो वैल्यू ज्यादा ही मिल रही होगी हमें। पर मैंने नॉर्मल कंडीशंस बोली ना विदिशा, मैंने ये तो नहीं बोला कि इन इलास्टिक एक्सपोर्टेड कमोडिटी है, नॉर्मल कंडीशंस, ओके, नॉर्मल कंडीशंस। इलास्टिक होगी तो बिल्कुल ही गया, इन इलास्टिक होगी तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, बट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हम जनरल तो डिक्लाइन होगा ना, +1 रहे। ठीक है, या महंगा हो जाएगा, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट इज महंगा हो जाएगा, चलो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा केस है, ये तो बताओ, एप्रिसिएशन का है कि डेप्रिसिएशन का है? दिस इज एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन? Ayushi, is this appreciation or depreciation? अमित, अंजलि, आशु, अविनाश, पार्थ, सचिन, क्या कर रहे हो आप लोग? सिर्फ विदिशा और रवि पढ़ रहे हैं क्या? दिस इज, यस, दिस इज एप्रिसिएशन। एनीवेज, सो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी कि जब यूएस अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे हम लोग अगर हम बोलते हैं कि उसका एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो रहा है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, इसका मतलब उनका ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब वो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि पहले करते थे। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट फर्दर इंक्रीज हो गया इन पॉलिसीज की वजह से। नाउ दिस टुक प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वर्सनिंग थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस व्हिच वाज एग्रेवेटेड बाय द हाई फ्लाइंग डॉलर। थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मैंने आप लोगों को कल बताई थी क्या होता है ये डेट क्राइसिस, पूरा हमें इन डेप्थ पढ़ना है। तो अभी हम लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही थी? थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस चल रहा था, यूएसडी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। यूएस पहले ये कर चुका था कि जो सारी कंट्रीज हैं उनको रिजर्व्स यूएसडी में मेंटेन करना है, सो ओवरऑल द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज सफरिंग अ लॉट, एंड इन टर्न ऑब्वियसली बाकी सारे इंडिकेटर्स भी सफर कर रहे थे। सो सिंस मोस्ट ऑफ द डेट वाज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स ओनली, इट और ये भी मत भूलो कि जो हमारी ओपेक कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज है, वो यूएसडी में इन्वेस्ट कर रही थी, और जो यूएस है वो बाहर की कंट्रीज को यूएसडी के टर्म्स में उनको लोन दे रहा था। और ये यूएसडी, अगर हम लोगों का यूएस कंट्री हमारे डेफिसिट में चले गई, तो यही करेंसी सब लोगों को एक तरीके से ये ट्रांसफर करेगी, इम्पैक्ट करेगी। So it was more expensive for debtor nations such as Brazil, Mexico, Poland and Venezuela to acquire dollars to meet their debt service payments. Venezuela का जो सफरिंग है, इकोनॉमिक सफरिंग है, वो उस टाइम से स्टार्ट हुआ था और अभी तक उसका सफरिंग खत्म नहीं हुआ है। What is the maximum? अभी वेनेजुएला की बहुत आई थी 3-4 महीने पहले, सारी जगह न्यूज़पेपर्स, सारी जगह वेनेजुएला का डिस्कशन हो रहा था। What is the maximum currency note that Venezuela has printed? Any idea? Maximum currency note that Venezuela has printed?
मैम कुछ करोड़ों में था आई गेस, जहां तक मैंने पढ़ा था, शायद कुछ करोड़ में बना दिया था उन्होंने एक नोट को। Anybody else? As per my information, it was 1 लाख बॉलीवर बिली, जो उनका डोमेस्टिक करेंसी है, 1 लाख का उन्होंने किया था। मुझे करोड़ का तो आइडिया खैर नहीं है। एज पर मी इट्स 1 लाख। आयुषी, डिड यू गूगल? एज पर मी इट्स 1 लाख, द लास्ट दैट आई रिमेंबर। मुझे इतना पता है कि उनका 10 lakhs का, या यस, ओके, वेरी गुड आयुषी। मुझे इतना पता है कि उनका 10 लाख का या ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने वो किया या नहीं किया, दैट आई डोंट नो। द लास्ट आई नो वॉज 1 लाख। करोड़ तो रवि आप कंफर्म कर देना मेरे को। सो एनीवेज, सो क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, सारी कंट्रीज इंपैक्ट हो रही थी यूएस की वजह से, तो यूएस बहुत ज़रूरी हो गया था कि यूएस किसी तरीके से इम्प्रूव करे। Now, adding to the difficulties of the debtor nations was a general disinflation. What is disinflation? What is the difference between deflation and disinflation? What is the difference between deflation and disinflation? Deflation. मैम बेसिकली इन्फ्लेशन होता है बट जिस रेट से बढ़ रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। In disinflation? हाँ। Yes. डिसइन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन हो रहा है बट जिस रेट से पहले हो रहा था वो रिडक्शन है, एंड डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, देयर इज अ रिडक्शन इन द ओवरऑल प्राइस लेवल. Nice that you remember. Okay, so adding to the difficulties of the debtor nations was a general disinflation which was particularly severe for resource exports, including oil, that were the source of much of their revenue. तो उसी का प्राइस फिर रिड्यूस हो रहा था, रेवेन्यू इन कंट्रीज का रिड्यूस हो रहा था, बाकी सारी चीजें तो प्रॉब्लमेटिक चली रही थी। फर्दर मोर, बिकॉज दे हैड टू मीट द डेट पेमेंट्स ऑल्सो, विच डेट पेमेंट्स, जो उनको यूएसडी को करनी थी, और यूएसडी उस टाइम पे अप्रिशिएट हो रहा था, तो जो उनके इंटरेस्ट रेट का वैल्यू था, रियल वैल्यू तो था क्योंकि एक करेंसी हमारी अप्रिशिएट कर रही है, जिस करेंसी में हमको पे करना है, वो वाली वैल्यू उनकी इंक्रीज हो रही थी। सो डेटर कंट्रीज को सारी तरफ से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सेटबैक हो रहा था। द डेटर्स कुड नॉट रिड्यूस ऑयल एंड अदर रिसोर्स प्रोडक्शन एज दे वुड नॉर्मली डू एट लो प्राइसेस, क्योंकि यही इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। अगर इसी को इन्होंने कम कर दिया, इसको कम करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये अपनी सप्लाई कम कर देंगे तो इनका क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेस सप्लाई जो हो रही है बेसिकली वो रिमूव अगर हम करेंगे और मार्केट में एक ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के होल्ड करके या सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके, कि एक्सेस डिमांड हो जाए, तो इनके प्राइसेस इंक्रीज हो सकते थे। बट ये उस सिचुएशन में थे ही नहीं। जो भी इनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा था वो यहीं से आ रहा था। अगर ये इन रिसोर्सेज को या ऑयल को भी रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे जहां से इनका रेवेन्यू आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही इनका रेवेन्यू जीरो अंडा हो जाएगा, ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दीज कंट्रीज वर इन फिक्स, इनको समझ नहीं आ रहा था हाउ टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस. Indeed, some debtor nations had to increase production to make up for the lower prices, and this put even more downward pressure on the export prices. क्योंकि अब हम लोगों के प्राइसेस इतने कम हो चुके थे कि हम लोगों का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो हम क्या चाहेंगे, प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे, एटलीस्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर दें ताकि लोग ज्यादा उस चीज को परचेज करें. इफ वी मूव विद द कंसेप्ट ऑफ सेज लॉ, सो दे वांटेड टू इंक्रीज द क्वांटिटी. पर उसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ मोर सप्लाई इन द इकोनॉमी देयर वाज फर्दर रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट प्राइसेस, दैट इज डिक्लाइनिंग ऑयल एंड अदर प्राइसेस. तो ये ओपेक क्राइसिस क्या था, पहले इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, उसके बाद यूएसडी की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब फाइनली इन लोगों को डिसइंफ्लेशन क्रिएट हुआ, खुद इन लोगों ने सप्लाई बढ़ाई इन ऑर्डर टू हैव मोर रेवेन्यू, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस का ड्रास्टिक डिक्लाइन हो गया था और इन कंट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा था. This was entire OPEC crisis. Now, caused producers to produce more to meet the debt payments and further lowering their resource prices, thereby causing a further increase in output and so on. So, while the third world debt crisis, which accompanied this resource deflation, now here it is deflation. पहले हम लोगों का स्टार्ट कहां से हुआ, डिसइन्फ्लेशन से, रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन लेवल से, बट अल्टीमेटली क्या हो गया, प्राइस लेवल ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि इन्होंने आउटपुट इतना इंक्रीज करना पड़ गया था इनको. ये चीज समझ आई? स्टार्टेड फ्रॉम डिसइन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ यूएस डेफिसिट, बट अल्टीमेटली रीच टू डिफ्लेशन क्राइटेरिया. समझ आई ये चीज? दिस मूवमेंट, हाउ दीज कंट्रीज मूव्ड फ्रॉम डिसइन्फ्लेशन टू डिफ्लेशन.
No response. Anyways, so while the third world debt crisis, which accompanied this resource deflation, overlaps the period of flexible exchange rates and the subsequent cooperative intervention period. This cooperative intervention period, ये भी हम लोग आगे बढ़ेंगे. Cooperative intervention period basically क्या है? Gold standard गया, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट गया, कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है कि क्या करना है. तो उसके बाद फिर फाइनली एक कोऑपरेटिव अग्रीमेंट हुआ था, दैट वी विल डिस्कस, ट्यूटोरियल में डिस्कस हो जाएगा आज वो. So it is worth singling out the debt years because the crisis helped transform the international financial arrangements. So these crises helped transform international financial arrangements. जैसे क्राइसिस आ रहे थे वैसे वैसे हम लोग डिफरेंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की तरफ मूव करते जा रहे थे. Now this we are starting with the in-depth discussion of the third world debt crisis 1982 to 1989. Now as far as I can see यहाँ पे भी कुछ नीचे की lines missing है. Anyways, I'll speak that. So now in the इसमें ना हम लोगों की दो तीन चीजें. एक तो पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड, what exactly was the situation, then we will discuss ये क्राइसिस क्यों हुआ था. So there are about 4 or 5 causes कि ये क्राइसिस क्यों हुआ था और उस क्राइसिस को हैंडल कैसे किया था. So there are 3 things into this. One, normal condition जो अभी हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. Then what were the causes? I've listed them in bullets, and then how this crisis was handled. So the high interest rate on loans to developing countries. कौन से loans? जो US provide कर रहा था इन countries को. So the high interest rates on loans to developing countries and the rapid economic growth some of these countries had enjoyed in the 1970s led even some of the most conservative banks from industrialized countries to make substantial fractions of their loans to the developing countries. ये मैंने आपको कहा था कि मैं ये चीज़ें जो यूएस का सारा है लोन आउट करना और कैसे करना, वो मैंने आपको लेमन टर्म्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया था. अगर कोई ऐसा बुलेट है जिस पे आप दोबारा से क्लैरिटी चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वहीं रोक देना. For example, they are discussing for the largest 15 US banks, developing country loans at the outset of, you don't have to remember these numbers. Outset of 1982 amounted to 7.9% of their assets and 150% of their capital. This meant that default on all these loans would place the banks directly into this insolvency condition. मुझे ये insolvency भी मैं explain कर देती, but insolvency तो हमारा बिल भी आ चुका है. So do I need to explain this insolvency? इंडिया में खुद ही हम लोगों के अभी NPAs वगैरह काफी सालों से डिस्कस हुए हैं. एंड इंसॉल्वेंसी बिल भी आ चुका है. सो आई थिंक दैट दिस इंसॉल्वेंसी की क्यों अगर हमारा डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक्स कंप्लीटली एक टेक्निकल इंसॉल्वेंसी वाले फेज में चले जाएंगे और उसके कितने ज्यादा रेपरकशंस हो सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर, ये चीज हमको क्लियर है since so much has been already discussed in the aspect of India in the current time period. However, since many of the loans were made to government or guaranteed by the governments, which are so-called sovereign loans, few bankers seemed अवेयर कि उनको डिफॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि या तो वो गवर्नमेंट के थ्रू लोन्स थे या फिर गवर्नमेंट ने गारंटी की थी. तो बैंक्स काफी रिलैक्स बैठे हुए थे कि ठीक है कोई नहीं, देते रहो, हम लोगों का डिफॉल्ट के चांसेस इतने होंगे नहीं सिंस गवर्नमेंट का गारंटी है या गवर्नमेंट को लोन आउट किया हुआ है. A common voiced opinion was that the currencies don't go bankrupt. ये तो मैं एक बार आपको ना यहाँ से ही शेयर करूँगी, एक मिनट रुको, because I want you to read this entire line. I hope my laptop screen is visible. So just read this last bullet from here. It says a commonly voiced opinion was that countries don't go bankrupt, only companies go bankrupt. तो ये बैंक्स इतना रिलैक्स क्यों बैठे थे? क्योंकि इनको ये लग रहा था हमने गवर्नमेंट को लोन दिया है, हमने गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स दिए और कोई कंट्री थोड़ी ना बैंकरप्ट होती है. बट अब वेनेजुएला का एग्जांपल हम लोगों के सामने है. कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती है, पर अगर हम कंट्रीज को या हम सॉवरेन लोन्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, वो उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता. सो व्हाट वाज ओवरलुक्ड बाय द बैंकर्स इन देयर कॉम्प्लिसेंसी वाज दैट कंट्रीज कैन गो बैंकरप्ट इन टर्म्स ऑफ USD, because USD is maintained as reserves and the vast majority of third world debt was denominated in the USD. क्योंकि वो रिजर्व्स हमने उसी में मेंटेन करके रखे थे, लोन्स हमको उसी में मिल रहा था, जो बाकी जो सप्लायर्स थे ऑयल के वो भी उसी में सप्लाई कर रहे थे, तो USD के टर्म्स में बैंकरप्ट हो सकते हैं.
और गोल्ड के टर्म्स में भी हो सकते थे, जब भी तो हमने गोल्ड को डिमोनेटाइज कर दिया था. नाउ क्लियरली इफ कंट्रीज बोरोड इन देयर ओन करेंसीज दे कुड ऑलवेज रीपे डेट. व्हाई? क्योंकि वो प्रिंट करके अपने डेट को रीपे कर सकते हैं. उस केस में दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज है. क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर हम प्रिंट करके, अगर हम अपनी करेंसी में प्रिंट करके डेट को पे ऑफ करते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन. क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? some hyperinflation maybe. इन्फ्लेशन हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग वो चीज नहीं करते हैं. So next, of course, bankers would have been very wary of loans denominated in the borrower's currencies, knowing that on repayment the currencies they received would probably have little value. So it is worth noting that if the debtor nations had issued bonds rather than the arranged bank loans, the inability to pay would have meant outright default and not rescheduling. For example, in a similar international debt crisis of the 1930s involving bonds, defaults occurred on the majority of foreign issued USD. Now, this debt crisis, ये सबसे पहले हम लोगों को मेक्सिको में पता चला था कि ठीक है, मेक्सिको अनाउंस कि ये अपने रीपेमेंट्स को नहीं कर पा रही है, एंड द अमाउंट वाज $100 बिलियन. एंड ये कौन से डॉलर्स है? हमारा USD, जिसकी सिचुएशन जो खुद ही अपना एक डेफिसिट में रन कर रहा है. सो विद इन 1 year of that announcement, 47 debtor nations were negotiating with their creditors and with the international organizations such as IMF and World Bank to reschedule their payments. Imagine, क्योंकि हम लोगों का यूएस इतना वीक चल रहा था और यूएस हमारा स्प्रेड हो चुका था, सारी कंट्री USD स्प्रेड हो चुका था बिकॉज ऑफ लोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स. 47 डेटर नेशंस डिक्लेयर्ड कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास डेट बहुत ज्यादा हो गया है, वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. So the negotiations involved possible changes in magnitude, maturity and currency composition. See, currency composition of debt, कौन सी करेंसी की टर्म्स में हमको ये डेट पे करना है, ये सारी चीजें नेगोशिएट हो रही थी, डिस्कस हो रही थी. Now, talk of a debtors cartel and default by debtors was matched against the threat of denial of future credits by the creditor banks and their governments कि आगे हम आपको लोन नहीं देंगे. This was the background. इंडिया के साथ भी एक्चुअली यही केस हुआ था. Nobody was willing to give loan to India and finally 1990s जब हम लोगों को लोन मिला था और उस लोन की कंडीशन थी कि हमको रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को वो लोन मिला था IMF से. Now, this was the background to the intense bargaining between the debtors and the creditors, which stretched on throughout the 1980s. The creditors knew that debtors would repudiate if the value of repudiated debt exceeded the present value of the condition in the form of denied access to future credit. So till now we have discussed the background. Is it clear to you all? I'll just open from here messages so that I can read your message if at all you do. So background clear है कि actually हो क्या रहा था, क्यों ये countries को 3-4 सारी डायरेक्शन से इनको एक सेटबैक लग रहा था. नॉर्मल टर्म्स में आप किसी को बता पाओगे थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस क्यों हो गया था, इतनी सारी कंट्रीज को प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? अगर कोई आपसे पूछे विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन? मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ. विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन? काइंड ऑफ आयुषी, रवि, विदिशा, Sachin. Have to read it again? Of course, you have to read it again. अभी तो clear होगा थोड़ा सा. Okay, चलो थोड़ा सा let's complete it पूरा सा. So then probably we'll be able to explain. Now, so these are certain bullets that I have made. Now, causes numerous factors combined to make the crisis as severe as it was. As we all know, सारी directions there were various factors. Number one is in the 2 years, that is from 1979 and 1980, there was a 27% decline in the commodity prices. तो अभी तक जो हमने ऊपर से डिस्कस किया था ना कि डिसइन्फ्लेशन हो रहा था, फिर वो डिफ्लेशन हुआ, वही चीज का यहाँ पे एक्सपेंशन है. तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मली इसको लिस्ट किया है. सो नंबर 1 हम लोगों का डिसइन्फ्लेशन हो रहा था. देयर वाज अ 27% डिक्लाइन इन द कमोडिटी प्राइसेस एंड अ रिसेशन बिगैन इन डेवलपिंग as well as the developed countries. So this meant export revenue debtor nations के कम हो रहे थे, which depended on commodity exports,
and yet it was from those export revenues that they have to service debts. So the loans, और जितना ज्यादा हम लोग डेट को पे ऑफ करने का वेट करेंगे उतना ही ज्यादा बर्डन आएगा सिटीजन्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उतना ही ज्यादा हमें टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। पर आप सोचो प्राइसेस रिड्यूस कर रहे हैं हमारे लगा देंगे। सो इसीलिए इन कंट्रीज को ये भी लग रहा था कि हम डेट भी हम लोगों को पे करना है, तो इससे अच्छा है कि हम क्वांटिटी इंक्रीज करते जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ द लोन्स हैड बीन सॉट एंड ग्रांटेड बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, एंड येट द वेरी अपोजिट थिंग अकर्ड। व्हाट हैपेंड? we all know what happened कि हमारे prices और ज़्यादा reduce हो गए थे। Now the debt second point is, so one factor was this reduction and a reduction in the prices and a recession. Second is the debts were denominated in USD, and in 1980s the USD began a spectacular climb that by 1985 had almost doubled its value. Doubled मतलब appreciate हो गई थी as compared against all other major currencies, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना और ज्यादा मुश्किल हो गया। सो थर्ड बुलेट सेज इंटरेस्ट रेट एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज आफ्टर अ स्विच टू एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी with the US prime rate topping 20%, and this made the payment of interest difficult for many borrowers and repayment of principal just impossible. ये तीन बुलेट्स क्लियर है, ये तीन कॉजेस क्लियर है, तीन कॉजेस क्लियर है। आपका इसके ऊपर आराम से 5-10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ये अगर आपको थ्योरीज क्लियर होंगी ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसी तरीके से बोल भी रही हूँ कि आपको रटना ना पड़े। ओके, लास्ट इज दैट अ सब्सटैंशियल कंपोनेंट ऑफ बोरोड फंड्स हैड नॉट बीन डिवोटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो अब हम लोगों ने ये पढ़ा है, मैक्रो में भी पढ़ा है, अदरवाइज भी हमें पता है कि किसी से अगर हम लोन ले रहे हैं और उस लोन को हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम उसको कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। अगर हमने वो लोन लेके कोई और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट ही नहीं की, किसी प्रोडक्शन में पैसा लगाया ही नहीं, डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लिया, तो हम पे क्या करेंगे? हम कुछ पे ही नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो जो भी पैसा ले रहे थे उससे वो इनकम जनरेट नहीं कर रहे थे, उसको वो कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो डेट को रीपेमेंट करना और मुश्किल हो रहा था। This is what this point is saying. Substantial component of borrowed funds had not been devoted to investment, which would have generated income to help service debts. Rather, much of the debt has been used to subsidize the consumption. And furthermore, due to political pressures, it was difficult to remove these subsidies, and so borrowing continued. Many debtor nations were on a knife edge, risking riots and revolution. Obviously, अगर हमारी बेसिक चीजें हम लोगों को नहीं मिल रही हैं तो ये riots, revolution, political चीजें, ये सारी चीजें तो होंगी। So then, at the height of the debt crisis in the mid 1980s, visits by IMF officials to these debtor nations started, so that ये IMF इनको convince कर सके कि आप अपनी consumption के ऊपर जो subsidies government provide कर रही है उस चीज को reduce करो। But वहाँ पे भी वो जिन भी member countries में जा रहे थे वहाँ पे भी IMF के जो officials थे उनको प्रोटेस्ट एंड वही राइट्स वगैरह को फेस करना पड़ रहा था। सो इन इट्स एफर्ट्स टू फोर्स इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑन डेटर्स बाय मेकिंग हेल्प कंटिंजेंट on a return to market forces, the IMF actually became a villain in the eyes of the poor and in many developing nations. अभी मुझे बताओ आयुषी, अभी थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे? एंड विदिशा, now will you be able to explain it in a bit better manner? Okay. Now, the principal fear of officials was the consequence of bank failures brought about by the defaults. So this fear was based on the view that losses would exceed the capital of many banks, so that effects would not be limited to bank shareholders. Rather, वो spillover effect हो जाएंगे, और क्योंकि banks के पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आया हुआ है तो वो depositors को भी impact करेगा। अभी भी तो यही हो रहा है ना। See, right now this is happening. Yes बैंक का केस था, एक कौन सा विजया बैंक का किस बैंक का केस था जहाँ पे लिमिट इम्पोज कर दी थी कि आप 50,000 से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते हो। तो जब बैंक्स को प्रॉब्लम होती है तो डिपॉजिटर्स को भी प्रॉब्लम होती है। वो डिपॉजिटर्स भी तो हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स का काम कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारा एक सेक्टर में एक फेज में जब इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट्स अकर हो जाते हैं।
So there could be runs on banks if governments did not bail them out by purchasing the bad debts. ये bail का क्या मतलब होता है? Purchasing bad debts का क्या मतलब होता है? मैक्रो में लास्ट यूनिट में पिछले सेमेस्टर में डिस्कस हो चुका है. किसी को डाउट है तो रिकॉर्डिंग अपलोडेड होगी. उस टाइम पे क्लासरूम नहीं होता था, तो यूट्यूब पे होगी, वहां देख लेना. पर ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. Now, bank bailouts were viewed by many as inflationary. Many argued, therefore, that the consequences of the debt crisis would be financial panic and runaway inflation. Now, how this entire crisis was handled? What is the time? Oh, we have time. Yes, so we'll complete this. Now, how this entire crisis was handled? First, the fact that the 1980s ended without widespread bank failures and financial chaos reflects the step-by-step rescheduling this. So, almost 2 decades of economic growth and a number of steps taken by the international organizations and banks in a cooperative manner helped all these countries and everybody to come out of this crisis. So some of the more notable of the actions taken were, number one, extensions of standby credits by the international financial institutions. Standby credits हमने कल डिस्कस किया था कि IMF ने कैसे स्टेप बाय स्टेप करके एक्सपैंड किया है कि पहले वो लोन के लिए अलग से अप्रूवल देते थे, फिर उन्होंने बोला आपको अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, फिर हमने SDRs इंक्लूड किए, फिर हमने अब हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए पहले से ही हम आपका इतना अमाउंट स्टैंड बाय पे रख रहे हैं, immediately you take help. Second bullet says, second solution or second step was rescheduling of payments to extended intervals. Third, private bank lending to avoid realizations showing on the balance sheet. Fourth, forgiving of some of the old loans. And fifth is reduced interest rate on other loans. एक चीज बताओ, क्या ये चीजें हमारी अभी जो कोविड में अकर हुई थी, क्या हम लोगों ने कुछ सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की थी? रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, लोन्स को एक्सटेंड कर दो, रीशेड्यूल कर दो लोन्स को. Yeah, so same steps were taken. Now the experience with the third world debt crisis shows how financially and economically interdependent we have become. By we, it means the countries have become. Nations have come to recognize that failure of other countries' banks will surely have a spillover effect on our own banks, and in turn it will have an impact on the depositors, which are consumers, which will in turn impact the demand in the market, and that will in turn impact the producers, and that in turn will impact these factor services जो हम provide करते हैं. So our income will further reduce. So ये चीजें हमको अब समझ आने लग गई थी कि किसी भी एक कंट्री के अगर कोई क्राइसिस होता है तो वो सबको इम्पैक्ट करेगा. So through regular economic summits among national leaders and through even more frequent contact among the central bankers and other senior officials, countries have been cooperating since then. And as with the physical environment, it has become recognized that the global good can no longer be achieved through independent competitive action, and the same conclusion emerges from considering the shifting in thinking that prompted Plaza Agreement in 1985. जो मैंने आपको बोला था ना कि 1985 वाली, I hope I'm still presenting. मेरा स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है लैपटॉप पर? नो मैम. एक मिनट. हाँ, ये जो मैंने अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है लास्ट लाइन यहाँ पे, दैट वी हैव रियलाइज दैट इट इज इम्पोर्टेंट ग्लोबल गुड के लिए कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. और इसी कंक्लूजन के बेसिस पे 19 हमने इमीडिएट स्टेप्स तो ऊपर ले लिए, ये जो 5 बुलेट्स है वो तो हमने ले लिए स्टेप्स, बट हमको अब ये रियलाइज हो गया कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें अब कोऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसको कोऑपरेशन करने के लिए हमने ये प्लाजा अग्रीमेंट किया 1985 में. This is cooperative intervention, that is Plaza Agreement era in 1985. अब एक बार मैं आपको पहले रिवाइज करा देती हूँ ताकि दिमाग से कुछ स्लिप ना हो.
राइट, यस। तो ये मैंने आपको यहाँ तक अभी बता दिया था। पहले हम लोगों का गोल्ड क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था, वर्ल्ड वॉर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इट वाज रीअडॉप्टेड, इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। देन फिर हमने गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद हमने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए, चलो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाते हैं। IMF हम लोगों ने क्रिएट किया, पर उसमें फ्रेंच ने ऑब्जेक्ट किया, रिपीटेड फाइनेंशियल क्राइसिस होते रहे। फाइनली 1973 में दोबारा से फ्लोटिंग करेंसीज हो गई। फिर यूएस का ये सारा केस स्टडी हमने डिस्कस किया। फिर ये थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस आया। So this presidential election in 1980s, this they again it adopted supply side economics. Then US trade deficit was increased क्योंकि USD appreciate हो रहा था, and ये थर्ड वर्ल्ड क्राइसिस को इसने और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और ज़्यादा इंटेंस कर दिया। सो डेटर नेशंस को क्योंकि अपना डेट पे करना था तो उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जिसकी वजह से हमारा डिसइंफ्लेशन से हम लोग डीफ्लेशन की तरफ मूव हुए। फिर ये थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस का समरी है दैट कंट्रीज वर लेंडिंग एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट to developed countries. Developing countries were not able to pay back because USD was appreciating. Then there are four causes: reduction in the commodity prices, recession, debts हमारे USD में थे, interest rate बहुत increase हो गए थे, loans को हम सही तरीके से use नहीं कर रहे थे। Fear क्या था कि हमारा spill over effects हो जाएंगे, सारी countries के ऊपर impact आएगा। तो हम लोगों ने इसका solution क्या निकाला, ठीक है immediate steps हम ले लेते हैं, but हमें अब एक cooperative agreement की जरूरत है। इतनी चीजें क्लियर हैं। ये कोऑपरेटिव अग्रीमेंट मैं ट्यूट में कराऊंगी आपको। कोऑपरेटिव अग्रीमेंट एंड दिस